ਹੈਲੋ ਵੈਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 2 ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜਿਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਕੂਲਮਸ ਫੋਰਸ। ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੂਲਮ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੂਲਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਐਕਸ਼ਨ ਐਟ ਆ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੂਲਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। 2 ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਜੋ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ? ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਫੋਰਸਿਸ ਐਗਜ਼ਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਦੋ ਚਾਰਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਸਟੈਪ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 2 ਸਟੈਪ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਊ। ਜੋ ਇਹ ਚਾਰਜ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉੱਪਰ ਰੱਖਤਾ, ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਚਾਰਜ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਊ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉੱਤੇ ਰੱਖਤਾ। ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਚਾਰਜ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਇਫੈਕਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਫੈਕਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਆਹ ਸਾਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਊ ਨੋਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰੱਖਤਾ। ਇਸ ਚਾਰਜ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਸ ਚਾਰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਚਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਤਾ ਸੀ ਕਿਊ ਚਾਰਜ, ਉਸ ਦਾ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕੀ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਉਸਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ? ਹਾਂ, ਟੈਸਟ। ਆ ਚਾਰਜ ਕਿਊ ਨੋਟ, ਤੇ ਇਸ ਚਾਰਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨੇਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ। ਜੋ ਇਹ ਚਾਰਜ ਕਿਊ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਤਾ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜੋ ਇਹ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਊ ਨੋਟ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਿਪੈਲ ਹੋਵੇ। ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਆ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਕਿਊ ਨੋਟ ਹੈ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਊ ਟੂ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ। ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਫੋਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਯੂਨਿਟ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ placed at a point without disturbing the source charge। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜੋ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? E is equals to force per unit charge। ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ F ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਰਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਕਿਊ ਨੋਟ ਚਾਰਜ ਉੱਪਰ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? F ਅਪੋਨ ਕਿਊ ਨੋਟ। ਹੁਣ ਨਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਿਦਾਊਟ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਦੀ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ। ਮੀਨਸ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਕਿਊ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਹੈ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਕਿਊ ਨੋਟ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੋਣ, ਲਾਈਕ ਆ ਵੀ 4 ਹੈ, ਆ ਵੀ 4 ਕੂਲਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਦੇ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਂ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ, ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਜਾਂ ਰਿਪਲਸਿਵ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਜਾਂ ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਮੀਨਸ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਆ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਕਿਊ ਨੋਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਹੋਗੀ। ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਪਰ ਡਿਊ ਟੂ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫੋਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ per unit positive charge
ऑन वैनिशिंग स्मॉल, कि जो टेस्ट चार्ज है बहुत छोटा, वैनिशिंग स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। इस तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड किया गया E इज इक्वल्स टू F ओवर क्यू नॉट, बट आप बोले टेस्ट चार्ज बहुत छोटा था ना, असी लिमिट लगाती, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 मीन्स जो आ क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है बहुत छोटा है, ठीक है। बट ये चीज़ जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जस्ट एक थ्योरेटिकल कॉन्सैप्ट है। प्रैक्टिकली तो जो चार्ज होएगा, एक चार्ज की वैल्यू कितनी हो सकती है, चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम तो मिनीमम होएगी ना, बिकॉज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इन्ना तो होएगा, इस तो घट तो हो नहीं सकता। देयरफॉर ये जस्ट एक थ्योरेटिकल कॉन्सैप्ट है, नॉट अ प्रैक्टिकल। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कि एक वैक्टर क्वांटिटी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वैक्टर क्वांटिटी है तो फिर ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੈਕਟਰ ਪਾਤਾ। ਜੇ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰਸ, ਐਜ਼ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰਸ। यूनिट्स की ने ਇਹਦੇ, फोर्स ਦੇ यूनिट ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਿਊਟਨ, ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੂਲਮ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੋਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਕੂਲਮ। इतों जेकर असी फोर्स कैलकुलेट करनी हो किवें करांगे, E इज इक्वल्स टू F ओवर क्यू है। अगर फोर्स कैलकुलेट करनी है किदां कैलकुलेट करांगे, क्यू नॉट इंटू E। नैक्सट है इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से असी इलैक्ट्रिक फील्ड नूं कैलकुलेट करना है। ये असी की करांगे, कोआर्डीनेट फ्रेम बना लांगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। असी कोई पॉइंट चार्ज मान लिया इत्थे, दिस चार्ज विल बी क्यू नॉट इज टेस्ट चार्ज, और असी सोर्स चार्ज इत्थे रखता प्लस क्यू। हुण इन्हां दोनों दे विच चार्जिस विच डिस्टेंस असी आर मान लिया, आर कैप यूनिट वैक्टर हो गया, तो जो फोर्स चार्ज क्यू नॉट उपर लग रही है ड्यू टू चार्ज क्यू, दैन इस वाली डायरैक्शन होएगी एफ फोर्स। तो इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रिलेशन किया सी एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कैपिटल क्यू चार्ज है, एक दूसरा की है क्यू नॉट ओवर डिस्टेंस, आर मान लेने डिस्टेंस। अगर असी मैगनीट्यूड ला रहे हैं हाँ इन मैगनीट्यूड, बट अगर डायरैक्शन लैनी हो दैन असी एफ उपर वैक्टर पा देंगे, कि इक्वल होएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर आर दा स्क्वायर। सानू पता इत्थे असी यूनिट वैक्टर पावांगे, पहला कर चुके हुए हैं। एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर। इत्थे आर दा यूनिट वैक्टर है, यूनिट वैक्टर की डेफिनेशन अप्लाई करो, वैक्टर डिवाइड बाय इट्स मैगनीट्यूड। हाँ भी मैगनीट्यूड असी बाहर विच लिख सकते हैं, क्यू नॉट ओवर आर क्यूब ऊपर हो जाएगा आर वैक्टर। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल्स टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 एफ अपॉन क्यू नॉट। असी मान लेने कि क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है बहुत छोटा है, दैन असी डेफिनेशन अप्लाई की, एफ दी वैल्यूज पुट करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू नॉट ओवर आर क्यूब 1/क्यू नॉट कैंसिल, लिमिट भी रिमूव हो जाएगी क्योंकि टेस्ट चार्ज तो रिमूव हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब थे आर दा वैक्टर। इलैक्ट्रिक फील्ड वैक्टर फॉर्म से आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब आर वैक्टर, बट अगर असी मैगनीट्यूड लेना हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इन मैगनीट्यूड। ये साडे कोल आ गया इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हुण अगर तुहानूं कोई न्यूमैरिकल आ जाए कि कोई भी चार्ज है 5 कूलम का, एक टेस्ट चार्ज पिया है 0.1 कूलम का, टेस्ट चार्ज है यानी यह क्यू नॉट है, आह की है कैपिटल क्यू, दोनों के डिस्टेंस पोज देता 1 मीटर का,
और कैलकुलेट करना इलैक्ट्रिक फील्ड देन कर सकते हैं। ई इज इक्वल्स टू 1/4πε0 सीधा 4πε0 सीधा 9 × 10⁹ भी लिख सकते हो। चार्ज की वैल्यू कितनी होएगी 5, क्या आर की वैल्यू की होएगी 1 का स्क्वायर। ठीक है, देन तुम सॉल्व कर लोगे। हुण इस रिलेशन तो साडी एक इंपॉर्टेंट चीज़ की निकल के आ रही है कि देखो ई इनवर्सली प्रपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, कि अगर डिस्टेंस ਵਧੇਗਾ, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, यानी आर एक चार्ज आ रहा सोर्स तो आ की आ टेस्ट चार्ज। अगर डिस्टेंस वध रहा, इन्होंने दोनों के बीच डिस्टेंस साडी कोल आर होएगा। मान लो कि आ टेस्ट चार्ज है तो इन्हों मैं चक के दूर लेके जा रहे हैं, दैन ये टेस्ट चार्ज इत्थे चला गया, दूर चला गया, डिस्टेंस वध गया। अगर डिस्टेंस ਵਧੇਗਾ दैन की होएगा इलैक्ट्रिक फील्ड घटेगा। ये इसनों समझने लिए तुसीं इदां समझ लो कि एक आह मैगनेट पिया, तो जो ये मैगनेट है एक आयरन की चीज़ को अट्रैक्ट करता पाया, इत्थे पिया तो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। अगर आयरन की चीज़ दूर चले जाएगी तो दैन जो ये फोर्स होएगी वो घटेगी, मीनस अट्रैक्शन घटेगी। सेम ही इत्थे कि अगर डिस्टेंस ਵਧੇਗਾ दैन इलैक्ट्रिक फील्ड घटेगा, क्योंकि स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस नाल इनवर्सली प्रपोर्शनल है। इलैक्ट्रिक फील्ड में आपां वैक्टर क्वांटिटी डिस्कस कीता सीगा। अगर असी इलैक्ट्रिक फील्ड में एक वैक्टर क्वांटिटी अज्यूम करते हैं तो जो एक टेस्ट चार्ज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हो या नैगेटिव चार्ज हो, उन्होंने लिए इलैक्ट्रिक फील्ड दी कोई डायरैक्शन होएगी, कोई इलैक्ट्रिक फील्ड दियाँ कि बाहर वाल जाना या अंदर वाल जाना। अगर असी पॉजिटिव चार्ज की गल करते हैं तो जो इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा बाहर वाल लगेगा। मीन्स इफ वी टॉक अबाउट पॉजिटिव चार्ज देन द इलैक्ट्रिक फील्ड विल बी आउटवर्ड। If we talk about negative charge then electric field will be inward. ओके जी, अगर असी आही जो इलैक्ट्रिक फील्ड कड्डी है उन्होंने असी तिन्ने कोआर्डीनेट एक्सिस च रिप्रजेंट करना होवे तो आर साडे कोल की सीगा, जस्ट एक वैक्टर क्वांटिटी नूं असी लिख सकते हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप जैड के कैप। आर दा मैग्नीट्यूड की होएगा स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड कढ़न का मैथड की हुंदा आई कैप का कंपोनेंट का स्क्वायर जे कैप कंपोनेंट का स्क्वायर के कैप कंपोनेंट का स्क्वायर। मीनस इत्थे की हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जैड स्क्वायर। आ रिलेशंस पुट करो, ई इज इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू इत्थे की पुट करना एक्स आई कैप वाई जे कैप जैड के कैप डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जैड स्क्वायर दा मैग्नीट्यूड दा क्यूब। नैक्सट इलैक्ट्रिक फील्ड की हो जाएगा 1/4πε0। इत्थे देखो जो आ रिलेशन है अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जैड स्क्वायर दा क्यूब। आ जो आ स्क्वायर रूट पाया होया इहदा मतलब की हुंदा दी पावर 1/2 दा क्यूब। सॉल्व करोगे कि आ जाएगा पावर 3/2 वाई जे कैप जेड के कैप डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दी पावर 3/2। अगर इकल्ला इकल्ला कंपोनेंट लिखना हो लाइक एक्स एक्सिस कितनी इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होएगी सारा सेम, बस इत्थे की आ जाएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जैड स्क्वायर, क्योंकि एक्स वाले कंपोनेंट की गल कर रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि आई कैप यूज़ करेंगे। सेम वे नाल वाई वाला लिखा तो जैड वाला लिखा। देखो अगर इत्थे उपर वैक्टर पा देंगे दैन इत्थे असीं आई कैप जे कैप या फिर के कैप लिखना सी, असीं इत्थे सिर्फ मैग्नीट्यूड लै रहे हैं। एक्स डायरैक्शन कितना होएगा, वाई डायरैक्शन कितना होएगा, जैड डायरैक्शन कितना होएगा। ये सी साडा इलैक्ट्रिक फील्ड जो कि असीं तिन्ने दे तिन्ने कंपोनेंट्स विच रिप्रजेंट किया। नैक्सट आपां करना है इलैक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वैक्टर। पोजीशन वैक्टर दियां टर्म्स विच कादा सोर्स चार्ज दा ऑब्जरवेशन पॉइंट करके। इहदे लई असीं की कीता कोआर्डीनेट फ्रेम लै लिया। जो आ कोआर्डीनेट फ्रेम लैता है, ये दो चार्जिस मान लिए, एक चार्ज क्यू मान लिया, दूसरा क्यू नॉट, क्योंकि आप इनू करना की है पोजीशन वैक्टर के टर्म्स विच, तो फिर सानू दोनों चार्जिस अलग अलग पोजीशनस ते लैने पैणगे, तो उन्हों का रिस्पैक्टिवली पोजीशन वैक्टर लेना पड़ेगा। ओरिजन हो गया
ਹਾਂ ਸਾਡੇ XYZ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨੇ X Y and Z। ਆ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਅਸੀਂ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ R ਹੈ। ਆ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ R ਡੈਸ਼ ਵੈਕਟਰ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ R ਵੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕੀ ਫੋਰਸ ਕਿਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਕਿਊ ਨੋਟ ਚਾਰਜ ਉੱਤੇ, ਦੈਨ ਫੋਰਸ ਔਨ ਚਾਰਜ ਕਿਊ ਨੋਟ ਡਿਊ ਟੂ ਚਾਰਜ ਕਿਊ, ਦੈਨ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਫੋਰਸ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੈਲਿਊ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਫੋਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस आर स्क्वायर ते आर दा यूनिट वेक्टर, या फिर असी जर्नल की लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, डिस्टेंस की है ए पी दा स्क्वायर ए पी दा यूनिट वेक्टर। जो यूनिट वेक्टर है फिर उसकी डेफिनेशन अप्लाई कर दो, ए पी स्क्वायर ए पी वेक्टर ए पी दा मैग्नीट्यूड। ਤਾਂ ਆ ਫਿਗਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ए पी ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਵਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵੈਕਟਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ओ ए ਵੈਕਟਰ प्लस ए पी ਵੈਕਟਰ इज इक्वल्स टू ओ पी ਵੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ए पी ਵੈਕਟਰ ओ पी ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ ओ ए ਵੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ओ पी ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ, ओ पी ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ आर ਵੈਕਟਰ ਤੇ ओ ए ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ आर डैश। ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆ ए पी ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर आर माइनस आर डैश द क्यूब आर माइनस आर डैश वैक्टर। ठीक है जी, हुण इलैक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन अप्लाई कर दो, E इज इक्वल्स टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 फोर्स अपॉन चार्ज, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 फोर्स की वैल्यू सबस्टिट्यूट कर दो अपॉन आर माइनस आर डैश द क्यूब आर माइनस आर डैश। नेक्स्ट डिवाइड बाय क्यू नॉट कट लिमिट भी रिमूव होगी, देन की आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर माइनस आर डैश क्यूब आर माइनस आर डैश वैक्टर। ये साडे कोल रिलेशन